قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ملک بھر میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے جو کہ وزارت تعلیم کے تحت کام کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کے زیر اہتمام علی گڑھ اردو کتاب میلے کا افتتاح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلچرل ایجوکیشن سینٹر میں عمل میں آیا۔ اے ایم یو کی وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے فیتا کاٹ کر اس کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ علی گڑھ کے لیے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہمیشہ سگنیفیکنٹ رول ادا کیا ہے اردو کے پروموشن کے لیے۔ اردو ہماری اپنی زبان ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی اسٹریس ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں اردو زبان میں چھپیں، اور اسی کی یہ کوشش بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے ٹیچرز بہت کتابیں لکھ بھی رہے ہیں اردو میں۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک مبارکباد کا موقع ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کتاب کا میلہ جو کیا ہے وہ، اور این سی پی ایل اس کے آرگنائزر ہیں، اور سی سی کلچرل ایجوکیشن سینٹر اور سر سید اکیڈمی کے کوآپریشن سے یہ ایگزیبیشن یہاں پہ آرگنائز ہوا ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، تمام بڑے بڑے آتھرز آئے ہیں اور ان سب کا کتابوں کا اجرا بھی ہو رہا ہے، اور بڑے شاعر لوگ اور آتھر لوگ، مصنف لوگ سب یہاں اکٹھے جمع ہیں۔ کیا اپیل کریں گے اسٹوڈنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس میلہ جو ہے لگا ہے اس کو وزٹ کریں، کتاب خریدیں، پڑھیں، اس کو محسوس کریں۔ کتاب کا کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیٹ میں بہت ہمیں انفارمیشن ملتا ہے، لیکن وہ کتاب کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال نے علی گڑھ اردو کتاب میلے کے افتتاحی اجلاس میں تعارفی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اردو کتاب میلہ نئی نسل میں کتاب کے کلچر کو فروغ دینے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے، اور اس قسم کی کاوشیں آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے۔ کس طرح کا یہ اردو میلہ ہے علی گڑھ کے اندر، اور علی گڑھ کا انتخاب کس لیے کیا؟ دیکھیے، علی گڑھ کا انتخاب انفیکٹ ایک نیچرل انتخاب ہے، اس لیے کہ علی گڑھ میں اردو تحریک شروع سے ہی پنپتی رہی، اور علی گڑھ کے تمام مقاصد میں ایک مقاصد یہ بھی ہے کہ اردو زبان کا فروغ ہو۔ اب ہم نے، ظاہر ہے کہ قومی اردو کونسل کا جو مینڈیٹ ہے وہ اردو زبان کے فروغ کا ہے۔ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اردو کی ایک بڑی آبادی ہے، میں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ہو کہ ایک ہم فل فلیج ایک بک فیئر کریں۔ ظاہر ہے کہ لیٹ صحیح، لیکن یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ مقصد تھا میرا کہ یہاں کی جو اردو آبادی ہے ان تک ہم رسائی ہماری حاصل ہو، ان تک ہم پہنچیں، اور ہم اس لحاظ سے اس کا انتخاب کیا۔ کتنے یہاں سے پبلشنگ ہاؤس علی گڑھ میں آپ نے یہاں بلائے ہیں، اور خاص طور سے کن کن لوگوں کو یہاں دعوت دی؟ ہم نے ایک اوپن جو میرا انویٹیشن تھا اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ 44 پبلشرز آئے ہیں، 54 اسٹال کے ساتھ ہم لوگ یہاں ہیں۔ سر، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ آج ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، تو قومی کونسل برائے اردو زبان جو ہمارا ادارہ ہے وہ اردو کے تعلق سے، ڈیجیٹلائزیشن کے تعلق سے کس طرح کا انجام دے رہا ہے؟ ڈیجیٹل دور میں بھی جو جہاں تک ہو سکا ہے کونسل کر رہی ہے کوشش۔ کونسل کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہماری جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہے، ای کتاب ایپ ہے اس پر ہے، اور ڈیجیٹلی ہماری کتابیں آلریڈی اپلوڈ ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جائیے اور دیکھ لیجیے۔ سر، ابھی تک کئی جگہ آپ نے یہ میلے منعقد کیے ہیں، کس طرح کا ریسپانس ملتا ہے اردو کے تعلق سے؟ اردو کی جو جب طرح کے میلے آپ لگاتے ہیں، اب تک جو رسپانس ملا ہے، 2 کتاب میلہ میں نے شری نگر میں لگایا، اور یہاں دراصل دیکھا یہ جائے کہ اس کا ایک اچھا رسپانس ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری ہے کہ جب آپ کہیں جائیں گے تبھی اس کے بعد آپ رسپانس کی بات کر سکتے ہیں۔ بغیر کہیں گئے ہوئے آپ یہ اندازہ خود سے لگا لیں یہاں کیا رسپانس ہوگا، کیا نہیں رسپانس ہوگا۔ پریکٹیکل آدمی ہوں، مجھے لگا کہ آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا کیا رسپانس ملا ہے۔ مجھے لگتا ہے علی گڑھ میں ایک بہت اچھا رسپانس ملنے کی ہمیں امید ہے۔ سر، نوجوانوں کے اور بچوں کے تعلق سے این سی پی ایل کس طرح کے اقدامات کو انجام دے رہا ہے؟ آپ پچھلے 1-1.5 سال میں میری جو سرگرمی ہے اس کو آپ اس کا اسٹڈی کیجیے، ویب سائٹ پر ہمارے ملے گا، سوشل سائٹ پر۔ ہم نے بچوں کے لیے بہت کام کیا ہے ریسنٹلی اوریجنل رائٹنگ میں، اور مجھے میرا خیال یہ ہے کہ 50 سے 55 کتابیں ہماری بچوں کے لیے آج بھی کچھ کتابوں کا آج بھی کچھ کتابوں کا اجرا ہوا، تو کئی کتابیں بچوں کی شائع ہو چکی ہیں، کئی ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اتنے بلک میں کونسل نے خود بھی نہیں کیا ہوگا، چھوڑ دیجیے دوسرے ادارے کی بات جس نے کیا کونسل نے خود بھی نہیں کیا ہوگا بچوں کے لحاظ سے، یا جو نئی نسل ہے اس کو جتنا انوالو کیا ہے۔ آپ کے اس بک فیئر میں جو ہم نے پلان کیا، جس طرح کا آتھر کو بلایا ہے، اس میں ایک بڑی نمائندگی
नौजवान नस्ल की है, जो आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में देख लीजिएगा, या आप जो लिस्ट आपको मिलेगी उसमें देखिएगा आप सीनियर के साथ जूनियर को हमने रखा है। कुछ प्रोग्राम तो मखसूस तौर पर नौजवानों के लिए है, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सारे प्रोग्राम हमारे जो है बच्चे और नौजवानों के लिए है, उससे शाम को प्रोग्राम सीनियर के लिए, लेकिन उसमें भी नौजवानों को हमने मौका दिया। अलीगढ़ वालों से क्या अपील करना चाहेंगे इस किताब मेले के साथ? अलीगढ़ वालों से मेरी एक ही दरखास्त होगी कि वो मेले की तरफ आए, और अलीगढ़ के लोग अपने जो गार्जियन हैं या स्टूडेंट हैं वो इनकरेज करें, मोटिवेट करें बच्चों को। कम से कम एक बच्चा या एक नौजवान या जो भी सीनियर अपने हाथ में एक किताब लेकर जरूर जाए। उर्दू ज़बान व अदब का शहर अलीगढ़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और यहाँ के लोगों ने हर ज़माने में उर्दू के इल्मी व अदबी सरमाए में गिरा कद्र इजाफा किया है। 22 से 30 नवंबर चलने वाले इस 9 रोज़ा उर्दू किताब मेले के दौरान मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। अलीगढ़ की 2 खुसूसियात हैं। एक तो ये कि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी है। यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है लिखने लिखाने का, और अदब का यहाँ का बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड रहा है, जिसमें अली सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, मजाज, उसके अलावा मंटो भी कुछ दिन यहाँ पढ़े, इसमें चुगताई भी यहाँ रही, हॉस्टल में रही। तो अदब के से ताल्लुक अगर किताबों का है, इल्म व अदब दोनों, तो वो अलीगढ़ से बेहतर मैं समझता हूँ कि कम जगह है। मैं नहीं कहता सबसे बेहतर है, कम जगह है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इनको मुबारकबाद देनी चाहिए एनसीपीएल को कि उन्होंने अलीगढ़ में इस तरह का मेला लगाया। इसमें कई शहरों से यहाँ पे बुक्स आई हैं और कई पब्लिशर्स अपने बेहतरीन जो कलेक्शन हो सकता था वो यहाँ लाए हैं। यहाँ लोग इस्तेफादा करेंगे उससे। दूसरी खुसूसियत इसकी इसी मामले में ये है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। बहुत कम जगहों पर ऐसे लोग मिलेंगे एक साथ जो वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। लिहाजा यहाँ तादाद स्टूडेंट्स की ज्यादा होगी। सुबह से रात तक वो यहाँ रह सकते हैं, जिस वक्त चाहें कमरे आए फिर जाएं, तो इससे बेहतर जगह नहीं होगी। और अलीगढ़ के लिए भी ये बहुत खुशाइंद है, इसलिए कि अलीगढ़ में इतना बड़ा मेला मैंने इससे पहले नहीं देखा था। अलीगढ़ में बहुत दिनों के बाद इस तरह का किताबी मेला लगा है, और हैरत की बात ये मुझे जो लग रही, बड़ी खुशगवार हैरत हो रही, हैरत तो नहीं खुशगवार हैरत, यहाँ जो उर्दू से मुताल्लिक किताबें मौजूद हैं, 80% के करीब किताबें उर्दू में हैं। लेकिन आप देखें तो बिल्कुल मेले का और जश्न का समा है। मुझे सिर्फ एक स्टॉल पे जो हमारी जो नुमाइश लगाई है, किताबों की नुमाइश लगाई है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, उसके स्टॉल से 2 दिन के अंदर करीब 2 लाख रुपए की किताबें बिकी। तो कहा जाता है, जो शम्स इकबाल साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने अलीगढ़ का इंतखाब किया। उन्होंने बताया था कि मालीगांव में हमने 8 दिन का मेला लगाया था, तो उसमें 2 करोड़ रुपए की किताबें फरोख्त हुई थी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से किताबों में सेल हो रही है, शायद अलीगढ़ वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बड़ी खुशहाइन बात है कि उर्दू की किताबें मेरे सामने, मैं उस दिन खड़ा हुआ था, एक किताब ले रहा था, मेरे सामने एक लड़का आया, उसने एक स्टॉल से 2000 रुपए की किताबें खरीदी उर्दू की। तो मुझे देख के बड़ी बहुत हैरत हुई और लगा कि अलीगढ़ का जो उर्दू का ताल्लुक है वो किसी न किसी सतह पर अभी तक जिंदा है। ये जो बुक फेयर लगाया है, इससे जो है उर्दू लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। उर्दू लैंग्वेज के बारे में 2-3 चीजें बताना जरूरी है। ये अभी मैंने दूरदर्शन वालों को भी बताया था। एक तो ये कि कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई रिलीजन नहीं होता उसका, वो सबकी उर्दू लैंग्वेज जो है हर फिरके की लैंग्वेज है, हर सेक्शन की लैंग्वेज है, हर रिलीजन की लैंग्वेज है। और ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, इसकी जो है एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और ये लैंग्वेज जो है हमारे कश्मीर में भी पॉपुलर है, दिल्ली में भी पॉपुलर है, तेलंगाना में भी पॉपुलर है, महाराष्ट्र में भी पॉपुलर हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम पॉपुलराइज और जगह भी करें। ख़ास तौर से ये इसकी मैं ज़रूरत समझता हूँ कि यूपी और बिहार में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। इसलिए यहाँ पे बहुत उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उर्दू टीचर्स भी हैं या प्राइमरी स्कूल्स में, तो बच्चे पढ़ें उर्दू को। और उर्दू देखिए, किसी लैंग्वेज को हम तब मानेंगे कि कोई जानता है जब वो उसको पढ़ना जाने और लिखना जाने, सिर्फ बोलने से नहीं होता ये।
तो उर्दू स्पीकिंग लोग तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को हम सिखाएं कि वो उर्दू पढ़ना भी सीखे और थोड़ा बहुत लिखना भी सीखे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस उर्दू किताब मेले में 50 से ज़ायद पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं और ये किताब मेला अलीगढ़ के लिए इल्मी, अदबी और सकाफती जश्न की हैसियत रखता है। ये किताबों का मेला है और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान उनकी निगरानी में कह लीजिए या उनके स्पॉन्सरशिप में ये बुक फेयर हिंदुस्तान के दिगर स्टेट में और शहरों में लगता है, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और पहली बार यहाँ लगा है ये बुक फेयर, कौमी कौंसिल का बुक फेयर, तो अच्छा लग रहा है और यहाँ के तलबा में बहुत जोश व खरोश है, एक शौक़ है, जोश है और जाहिर सी बात है कि ये तो हिंदुस्तान की जो कुछ बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उसमें से एक है, तो जाहिर सी बात है कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और कि लोग आएंगे और अच्छे खासे लोग आएंगे और अच्छा बुक फेयर बहुत कामयाब जाएगा, खुदा करे कामयाब जाए। हमें तो तवक्को है कि मतलब ये उम्मीद है कि बुक फेयर बहुत अच्छा जाएगा। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू इसको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आजकल जब बच्चे और बड़े लोग ख़ासतौर से सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो ये किताबों का मेला मुनक़्क़िद किया है और उर्दू की किताबों का मेला ख़ासतौर से अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो कहाँ होगा। सर सैयद के लिए उर्दू ज़बान एक मेमेंटो थी, सर सैयद ने कहा था ये हमारी हुकूमत का मेमेंटो है मुल्क में, तो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू को पॉपुलर बनाने के लिए ये बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छा कदम है। उसके साथ ही मैं अपील करता हूँ हम तलबा से, असातिज़ा से और गैर तदरीसी अमले से कि मेले विज़िट करें और कुछ किताबें भी ख़रीदें और उनको पढ़ें भी। मैं सबसे पहले तो इस मेले के ताल्लुक़ से NCPL का शुक्रगुज़ार हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कि उन्होंने अलीगढ़ को चुना। अलीगढ़ में हरचंद के उर्दू का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत माहौल है, लेकिन किताबें एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इल्म आगाही हासिल करते हैं। किताब हमारे बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं और उसी लिहाज से किताबों की अहमियत बढ़ जाती है। ज़िंदगी में अगर किताब और उस्ताद नहीं है तो आदमी, मैं समझता हूँ कि फिर कुछ नहीं है। उसी लिहाज से किताबी मेले का ये जो इनेकाद किया गया है यकीनन काबिल सताइश है, काबिल मुस्तहसन है और इससे लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी। इल्म अदब के जो प्यासे हैं वो यहाँ पर आकर सैराब होंगे। यकीनन ये बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का और NCPL का भी कि उन्होंने इस तरह की उर्दू की तकरीब यहाँ मुनक़्क़िद की। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा है, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ, तो एक तो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलता है अपनी किताबों को यहाँ दिखाने का और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें मैं समझता हूँ 50-60 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से पब्लिशर भी आए हुए हैं, तो हमें अपनी बात को कहने का भी मौका मिलता है। उसके साथ साथ जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये पता चलता है कि कौन से आजकल जदीद मौजू है जिसमें हमें लिखना चाहिए। कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा अलीगढ़ किताब मेले में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के अलावा कसीर तादाद में उमाइदीन शहर शिरकत कर रहे हैं। NCPL की ये कोशिश तो बहुत ही मुनासिब है और उर्दू से बेहतर और क्या इंतखाब हो सकता है अलीगढ़ से बेहतर। और हालांकि बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पे उर्दू मेले लगने चाहिए, पटना है, कश्मीर है और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं, महाराष्ट्र में कुछ होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये तमाम जगहों पर कुछ न कुछ काम कर चुके हैं। तो अलीगढ़ में बहुत दिनों के बाद NCPL की मौजूदगी इस तरीके से महसूस की गई कि तकरीबन 50 के करीब या 40 के करीब अच्छे पब्लिशर्स के स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। आप किसी मीडिया की रील को याद नहीं रख सकते 2 दिन से ज्यादा, लेकिन किताबें जो हैं आप 5-6 दहों तक याद रखते हैं। तो इन किताबों की कदर कीजिए। बिल्कुल हिंदुस्तान के उर्दूदा तबके ने अपना इत्र निकाल के गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ पे बिखेर दिया है। इन किताबों को देखिए, पसंद कीजिए और जितनी वसअत हो उतनी किताबें लीजिए। मैं इसे एक तारीखी मौका समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस तरह की अदबी और सकाफती फ़िज़ा हमवार हुई है और
कि हम अलीगढ़ वालों को और यूनिवर्सिटी वालों को इसकी इफादियत और इसकी मानवियत को समझना चाहिए कि एक ही जगह पर हिंदुस्तान के तमाम बड़े पब्लिशर्स, हिंदुस्तान की तमाम बहुत ही मेयारी किताबों को लेकर आए हैं, जिसका ताल्लुक हर उलूम व फ़नून से है, अदब से है, सकाफत से है, और इसके अलावा जितने भी उलूम व फ़नून हो सकते हैं, मजहबियात है, समाजियात है, सियासियात है, मुआशियात है, अदबियात है, शेरियात है, यानी कि जितनी भी कोशिश हो सकती थी इस मेले को मेयारी बनाने के लिए NCPUL ने बहुत ही मस्बत इक़दाम किए। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से फिर यहाँ पर हमने ये मेला मुनाक़िद किया है, और इसमें सर सैयद एकेडमी और कल्चरल एजुकेशन सेंटर ने दस्ते ताउन NCPUL के लिए बढ़ाया। हम मुबारकबाद देते हैं NCPUL को। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कौमी काउंसिल बराए फरोगी उर्दू जुबान की जानिब से मुनक़िद एक शानदार मेला है, जो उर्दू किताब के शायकीन के लिए एक पैगाम दे रहा है कि आइए और अपने फ़िक्र और ज़हानत को ताबदगी बुलंदी अता कीजिए, किताबें खरीदिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल को संवारिए। और इसके लिए मैंने एक लंबा सफ़र किया है कि मुझे किताबें खरीदनी है। और एक अच्छी बात इस मेले की ये है कि यहाँ पर उस तरह की किताबें मिल रही हैं जो आम तौर पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नायाब और नादिर किताबें आपको इस मेले में मिल जाएंगी। इसके लिए मैं शेखुल जामिया मोहतरमा प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का मौका फराहम किया कि उर्दू शायकीन के लिए उर्दू किताबें मुहैया हो जाएं। साहब, ये NCPUL का बहुत बड़ा कदम है कि उसने अलीगढ़ जैसे शहर में जो उर्दू का मरकज़ है, तहजीबी मरकज़ है, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ उर्दू बोलने वालों की है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स यहाँ से निकले हैं। आज भी उर्दू के जो बड़े राइटर्स हैं उनमें अच्छा खासा हिस्सा अलीगढ़ वालों का है, अलीगढ़ के राइटर हैं। तो NCPUL के इस मेले से जाहिर सी बात है कि उस रीडरशिप को तो खुशी मिली है, लेकिन एक आम रुझान से ये बन चला था कि उर्दू रीडरशिप कम होती जा रही है, उर्दू किताबें पढ़ने वाले कम हैं। लेकिन आप यहाँ आइए और देखिए कि किस कदर भीड़ है, लोगों में किस कदर जोश है, नौजवान भी हैं, बच्चों के भी प्रोग्राम है, बच्चों की भी किताबें हैं, हर सतह की, हर एज ग्रुप के लोगों की किताबें। इस एग्जीबिशन की अहमियत उर्दू के ताल्लुक से बहुत अहम है इस और उर्दू के फ़रोग़ के लिए। मैं 2016 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और हमारे इस ज़माने तालिब इल्मी में पहली एग्ज़िबिशन है। इससे उर्दू के शायकीन, उर्दू पढ़ने वालों के लिए और अलीगढ़ के शोबे उर्दू के लिए, सबके लिए एक अहम मौका है। इसके लिए हम NCPUL का और जो इसके मुआवनीन दीगर उर्दू एकेडमी है या CSE है, सबका हम खैर मकदम करते हैं। आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन लगी हुई है, नुमाइश या मेला कह लें हम, जो किताबों का मेला है। और इस मेले से पूरे यूनिवर्सिटी में एक जो है माहौल बना हुआ है, इल्मी फ़िज़ा कायम है। दूर दराज से लोग अपने स्कूल के बच्चों को भी ला रहे हैं यहाँ विज़िट के लिए, और एक इल्मी सरगर्मी एक तरह से बहुत शबाब पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। बस मैं कहना ये चाहूँगा कि NCPUL जो है, मैं यहाँ 2016 से स्टूडेंट हूँ, पहली बार मैं इस तरह का एक इल्मी मेला या इल्मी काम जो देख रहा हूँ वो हो रहा है। और NCPUL ने काफ़ी ताख़ीर की यहाँ आने में, और बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत वो यहाँ आए और इस तरह का एक इल्मी जो है मेला और किताबी मेला उन्होंने सजाया, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है और चीज़ें दोबारा भी NCPUL अलीगढ़ में इस तरह से करते ही रहेंगी, क्योंकि एज अ रिसर्च स्कॉलर हम देख रहे हैं कि हम लोगों को बहुत सारी किताबें अपनी ख़रीदने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ रहा है। सारी चीज़ें हमें यहीं बहुत आसानी से मैसर हो रही हैं, और उससे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक माहौल बना हुआ है। उर्दू किताब मेले में लगाए गए बुक स्टॉलों पर मुहिब्बान उर्दू का हुजूम देखने को मिल रहा है और कसीर तादाद में लोग अपने ज़ौक़ व शौक़ के मुताबिक किताबें भी खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त अलीगढ़ उर्दू मेले में आई हुई हूँ और ये जो है उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। NCPUL की जानिब से उठाया गया ये कदम वाकई काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर करीब 50 पब्लिकेशंस मौजूद हैं। अपनी अदब के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें यहाँ पर दस्तयाब हैं। जिस भी इंसान को किसी भी तरह की अदब के मुतालिक कोई भी किताब, किसी भी किताब की
ضرورت ہو تو وہ یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں اور ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم دلی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، دلی میں اویلیبلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم علی گڑھ کو دیکھتے ہیں تو یہاں بہت سارے پبلشرز ہیں، ڈفرینٹ کتابیں اویلیبل ہے. ہر پبلشر کا ایک اپنا ایک الگ کتابیں ہیں، اپنی ہر طرح کی کتابیں ہیں. تو بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ اتنے پبلشرز ایک ساتھ آئے ہیں، چاہے دلی ہو، ممبئی ہو یا گجرات ہو. بہت ریاستوں سے یہاں پبلشرز آئے ہیں. ان سے ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے، کہ بات کی ہے کہ کس طرح وہ کتابیں چھاپتے ہیں، کتنا لیتے ہیں، اور یہ سب. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ علی گڑھ میں اس طریقے کا انتظام کیا گیا ہے. 9 دن کا میلہ لگا ہوا ہے، بک فیئر لگی ہوئی ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ اردو کی کتابیں ہیں. اور لوگ جو ہیں جیسے کہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مطلب بہت آ رہے ہیں. میلہ جو ہے وہ بہت کامیاب لگ رہا ہے، لوگ کتابیں خرید رہے ہیں اور ایک بہت اچھا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، ادبی ماحول مل رہا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ میں بھی ریسرچ اسکالر ہوں، تو مجھے بھی یہاں پہ جو ہے وہ الگ الگ طریقے کی کتابیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں جو کہ میرے لیے بھی کافی ضروری ہیں. اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طریقے کا جو ہے وہ میلہ جو ہے وہ لگنا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت انگریزی کی وجہ سے ہندوستان کی تمام علاقائی زبانیں جو ہیں وہ چیلنج ہے ان کے لیے. اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سرکار نے NEP کے توسط سے جو ہے تمام زبانوں کو یکساں مواقع دیے ہیں. تو اب امید ہے کہ جو ہے یہ اردو زبان بھی ترقی کرے گی اور تمام لوگ جو ہے اردو کی طرف متوجہ ہوں گے. اور ویسے جو ہے جو نوجوانوں کا جو رجحان ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار کے مواقع تمام ہی زبانوں میں یا کسی بھی پیشے میں روزگار کم ہے. تو اس لیے صرف اردو کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے پچھلے 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ نئی نسل جو ہے وہ متوجہ ہو رہی ہے. اور جہاں تک ادب کی بات ہے، فکشن کی بات ہے، تو اس میں بھی جو ہے قابل قدر اضافہ ہوا ہے. یہ کہنا پوری طرح درست نہیں ہے کہ نئی نسل میں اردو کا رجحان کم ہو رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی پرانی کلاسیکی ادب، ان سب کو نئی نسل پسند کر رہی ہے. آپ دیکھیے ملینز میں ویوز جاتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کے کلام پر جو وہ پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ موسیقی سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن نئی نسل کی انہیں دلچسپی ہے، شاعری ہو، فکشن ہو، کچھ بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ اردو کا رجحان نئی نسل میں کم ہو رہا ہے. ہاں، تعلیمی اداروں میں اس چیز کی تھوڑی کمی دکھ رہی ہے، لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے، صرف اردو والے نہیں، اسے باقی جتنے بھی سبجیکٹس کے لوگ ہیں ان کے نوجوان نسل ہے، وہ سب اردو کو پسند کر رہی ہے. پڑھنے کی حد تک تو کر ہی رہی ہے، لکھنے کی حد تک ابھی ہمارا سفر تھوڑا پیچھے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد مکمل ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اردو جو ہے ہمارا کلچر رہا ہے، ہمارا ٹریڈیشن رہا ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اردو زبان میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اس کو پروموٹ کرنے میں ہو یا چاہے ابھی کی نسل بھی جو ہے کہ یہاں کی علی گڑھ کی بہت ڈیووٹڈ ہے ٹورڈز اردو. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اس ماحول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے ینگسٹرز آئے ہیں، کتنی بکس جو ہے پرچیز کر رہے، چاہے وہ اردو کی ہو، اسلامک بکس ہو یا انگلش کی بھی ہو. تو آئی گیس اس فیئر کا بہت رول رہا ہے کہ اردو کو پروموٹ کرنے میں، ایز ویل ایز یہاں پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں اباؤٹ اردو کے ڈسکشن، اردو کے زوال کے بارے میں، وہ بھی بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جو اردو پر ایک اسپیشل فوکس کر کے چلتے ہیں. اینڈ آج کے ٹائم میں لوگ اردو جیسی لینگویج سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ واٹ از دا امپورٹینس آف اردو. سو ایسے بک فیئر کا لگنا از ویری امپورٹینٹ تاکہ لوگوں کو ریئلائز ہو کہ آج بھی اردو ہم سے کتنا کنیکٹڈ ہے. آپ لوگوں نے یہاں آ کے کس طرح کا فیل محسوس کیا؟ ہم لوگ یہاں پر ایونٹ کوآرڈینیٹرس ہیں، ہم نے ایونٹ کروائے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کتنی پبلک آئی ہے. بٹ ایک چیز اس میں بھی ہے کہ آپ دیکھو زیادہ تر ایجڈ لوگ آئے ہیں، مطلب ینگسٹرس اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں اردو کے بارے میں اتنا نہیں پتا. تو اس بک فیئر کا لگنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اردو کے بارے میں. امید کی جانی چاہیے کہ قومی اردو کونسل کی یہ کوشش رنگ لائے گی اور اس اردو کتاب میلے میں لوگ شریک ہو کر اردو زبان و ادب کے تئیں قلبی لگاؤ محسوس کریں گے اور اس ماحول سے تحریک پا کر اردو کے نئے قارئین پیدا ہوں گے.